So the nervous tissue which contain densely packed nerve cells, and those nerve cells are called neurons. Children, the name neuron word comes from the Greek language, and the Greek word is neuro. Neuro का मतलब होता है nerve, right? So the nervous tissue is made up of by a specialized kind of cell, and that cell, that special or that densely packed cell is known as nerve cell or the neuron. Now talking about their purpose, so nervous tissue actually stimulate and transmit the stimulus very rapidly from one place to another place within the body. So basically children, these neurons are very specialized for the conduction of nerve impulses. They receive stimuli from within or outside the body and conduct impulses, that means they conduct signals which travel from one neuron to the another neuron. So they are highly specialized cell which basically involve in conduction of signals. ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आवर सराउंडिंग, या फिर विद इन आवर बॉडी. दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम आउटसाइड और विद इन आवर बॉडी. दे कंडक्ट द इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, सिग्नल्स को कंडक्ट करते हैं, which travel from one neuron to the another neuron. So they are basically involved in conduction of signals. Now children, talking about their location, so it is present in the brain, spinal cord and sense organ. So these are the cells which is located in such locations like brain, spinal cord and sense organs, right? And that is why it is said that the brain, spinal cord and nerves are composed of nervous tissue, right? So in the formation, in the composition of brain, in the composition of spinal cord, there is the involvement of nervous tissue. Now children, let us talk about the structure of neuron. अब अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, so there are three important parts which involve in the composition of neuron. The very first important part is known as cytone, right? Cytone को cell body भी कहा जाता है. So this is the very first important part. Now children, the cell body contains the major concentration of the cytoplasm and the central nucleus of the neuron. ये जो साइटोन होता है, ये जो सेल बॉडी होता है, ये एक टिपिकल सेल की तरह होता है. सारे सेल ऑर्गेनल्स जो आपने पढ़े हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं. द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन्स नीजल ग्रैन्यूल्स, और जो सेल बॉडी होता है उसमें नीजल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, विच आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोन. Now the next important part is known as axon. जो दूसरा important part है वो axon कहलाता है. And the axon is a long cylindrical process of uniform diameter, right? So this cylindrical structure जो आपको दिख रहा है, that is known as axon. And it is the cylindrical process. And children, it is the cylindrical process of the uniform diameter throughout the length, right? एक ही diameter की होती है tube that arise from the axon hillock of the cytone. Children, it shows fine branching at the terminal end. और ये जो terminal end पर आप देख रहे हो, इसके terminal end पर fine branches होती हैं, छोटी छोटी branches होती हैं, right? अब मैं अगर इस axon की बात करती हूँ, तो ये जो axon होता है, ये axon carries impulses away from the cell body. ये जो एक्सॉन होता है, ये सेल बॉडी से इम्पल्सेस को दूर लेके जाता है, ठीक है? सेल बॉडी से इम्पल्सेस को दूर लेके जाता है. एक्सॉन कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन में, राइट? एंड चिल्ड्रन, द सिनेप्टिक नोब of the terminal branch of neuron are connected with the dendrite branches of the adjacent neuron.
और ये जो टर्मिनल एंड आपको दिख रहा है, इस टर्मिनल एंड पे आप ये देख रहे हो कि इसके जो पॉइंट हैं उन पे नॉब्स प्रेजेंट हैं। ये नॉब्स जो होती हैं, ये नॉब्स कहलाती हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक है, अब इन सिनेप्टिक नोब्स का क्या काम होता है कि ये जो सिनेप्टिक नोब्स होती हैं, ये सिनेप्टिक नोब्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। ठीक है, एंड ईच जंक्शन इन फैक्ट हैज़ माइन्यूट गैप कॉल्ड सिनैप्स, और इनके बीच में जो माइन्यूट गैप होता है उसे सिनैप्स कहते हैं। इट इज़ मेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, राइट। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ नोन एज डेंड्राइट। मैंने अभी आपसे कहा कि जो एक्सॉन होता है ये सेल बॉडी से दूर लेके जाता है सिग्नल्स को, कहाँ? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। ये डेंड्राइट क्या होते हैं? डेंड्राइट की अगर हम बात करते हैं, सो दीज डेंड्राइट आर द शॉर्ट मच ब्रांचेस एंड टेपरिंग प्रोजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। आप देख रहे हो इस पर, ये सेल बॉडी पर ये ब्रांचेस अराइज हो रही हैं लाइक अ डेंड्रॉन। डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री लाइक। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये डेंड्राइट कहलाती हैं। और ये डेंड्राइट का क्या काम होता है, ये पहले न्यूरॉन के में जो ब्रांचेस होती हैं जो मैंने आपको बताई, इसके टर्मिनल एंड पे सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होती है। ये जो सिनेप्टिक नोब होती है, ये सिनेप्टिक नोब जो होती है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी होती हैं। तो इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, इस तरीके से मैसेज को फॉरवर्ड करती हैं, राइट। अच्छा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो फाइन सिनेप्टिक नोब्स होती हैं, एंड सिनेप्टिक नोब इट्स लुक लाइक दैट, राइट। But actually what happened children, the synaptic node is actually look like that. इन synaptic nobs में ये वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं ये, और इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके से मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। तो अब एक जल्दी से मैं आपको एक आउटलुक समझा दूँ। उसको समझने के लिए पहले ये पॉइंट देखिए। Like many nerve fiber combine together by the connective tissue and form a nerve, and children, nerve impulses enables animal to move rapidly in the response to stimulus. So children, this is the neuron interaction. So अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये पिक्चर में जो है न्यूरॉन इंटरैक्शन दिखाया है। न्यूरॉन इंटरैक्शन कैसे दिखाया है? Let us suppose this is the साइटोन, और साइटोन में ये प्रेजेंट है डेंड्राइट, और ये है एक्सॉन। एक्सॉन की ये फाइन ब्रांचेस, इन फाइन ब्रांचेस में ये सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये जो सिनेप्टिक नोब होती है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे चलता रहता है। सो दिस इज़ न्यूरॉन 1 एंड दिस न्यूरॉन 2, राइट। और दूसरे न्यूरॉन और पहले सिनेप्टिक नोब के बीच में जो गैप होता है उसे सिनैप्स कहते हैं। और सिनैप्स का बेसिकली इट इज़ मेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। दैट इज़ वाई आवर बॉडी वर्क्स इन द वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। हमारे ब्रेन से सिग्नल्स हमारे बॉडी में कैसे कैरी होते हैं? विद द हेल्प ऑफ सच न्यूरॉन्स, राइट। So the important, talking about the important function of the neuron, so basically it works in the transmission of information, right. So this is about the nervous tissue, right. So I hope that you got it very clearly. Children, still you have some kind of doubt, some kind of queries, then please do ask. So very soon I will forward you the assignment of same related to topics. Till then, have a nice day and thank you.